च मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परमं दर्शितुमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनमाद्यं यन् मे त्वदीनेन न दृष्ट पूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद्यज्ञाध्ययनेनं दानेन च किया क्रिया भिन्न तपोभिरुग्रेह एवं रूप शक्य अहम न लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदं मेदं वयेपेतभिः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार से कि इस रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। बस बहुत है अनामिका जी। इसको हर्षा जी आप जरा इंग्लिश में पढ़िएगा। ये विमी जी शायद आपकी दोस्त है ना, क्या नाम है इनका, मैं भूल गई, जो अभी आई हैं। जैस्मिन आ गई? जैस्मिन, हाँ जी हाँ जी, हाँ मेरे ख्याल से। ओके जी। जैस्मिन जी, ये 11th चैप्टर का गीता में 47 श्लोक से हमने 49 तक पढ़ा है। तो अब उसकी इंग्लिश जो है, हाँ इंग्लिश हर्षा जी पढ़ रही है, एक्सप्लेनेशन। इनके पास बुक नहीं है, इनके पास भी बुक नहीं है। अच्छा ठीक है, बुक भी नहीं है, और आई एम सिटिंग इन माय कार इन दिस थिंग नियर द जिम, सो somebody will have to do it today. बहुत ही नेक्स्ट टाइम। नहीं कोई नहीं, आप सुनो। हाँ, सुनने से भी हो जाएगी। सुनना भी बहुत बेटर है जी। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हर्षा जी आप बताइए। 47 shloka. The blessed Lord said, by my grace, O Arjuna, this form of mine has been shown to you by my own yoga, supreme, resplendent, primeval, infinite, universal form of mine, which has not been seen before by anyone else than you. Krishna knows Arjuna's limitation when he admits he cannot face the cosmic form. Krishna has been gracious in granting Arjuna's prayer to see his divine form. Through his yogic power, Arjuna visualizes the form. Krishna describes the universal form as being supreme, primeval, resplendent and endless. These adjectives indicate his infinite nature. Infinity transcends human perception, emotion, or thought. Hence, Krishna declares that none has seen such a form. It is only Arjuna's extreme devotion to Krishna that has earned him the unique vision. 48. Neither by the study of the Vedas, nor by yagnas, sacrifices, nor by gifts, nor by rituals, nor by severe austerities can I be seen in such a form in the world of men by anyone other than you, O great hero of the Kurus. The verse mentions the broad spiritual disciplines directed to different levels of a seeker's personality. His intellect must study the Vedas. The Vedas contain the highest knowledge, the eternal principles of life. They convey a philosophy leading one to the ultimate state of godhood.
With the intellect charged with such divine knowledge, his mind tends to become sacrificial and charitable. The mind then must be encouraged to serve, to sacrifice, to give rather than take. The resultant attitude purifies the mind. Having disciplined the mind and intellect, the seeker performs his obligatory functions with his body. Thus, practicing austerity, he directs these principles towards self unfoldment. The ultimate goal of all experiences is spiritual enlightenment. The seeker moves from the waking, dream, and deep sleep states to the fourth state of self realization. He reaches that supreme state just as a dreamer reaches the waking state. A dreamer, as long as he's experiencing the dream world, cannot perceive, feel, or comprehend the waker. A dreamer can only become the waker upon waking up. So too, a seeker cannot perceive, feel, or comprehend the self, God through the body, mind, or intellect. He can only become the self and merge with God. Hence, Krishna states that none has ever seen God. For Arjun alone, Krishna provided his yogic power to visualize his cosmic form. Arjuna's devotion earned him that special privilege. Krishna merely satisfied his curiosity to see God with a form, but he makes it quite clear that God has never been seen by anyone, nor can he ever be seen. This assertion concurs with the eternal truth proclaiming the transcendental nature of God. Verse 49. Having such a terrible form of having seen such a terrible form of mind, as this be not be bewildered, fearless with gladdened heart, you again behold this form of mind indeed. Arjuna can no longer take in the cosmic form. He is frightened and bewildered. Krishna consoles him and offers to reveal his gentle form. The drama of the cosmic vision gives a clear message that a seeker must proceed in the spiritual path gradually, cautiously. He must not exceed his limits in his anxiety to reach the goal. If he does, he'll be beset with fear and confusion. He will have to fall back and retrace his steps. हो गया 49. हाँ, बहुत ही इस पे अच्छी से एक्सप्लेनेशन दी हुई है इंग्लिश वाले में, बहुत ही बढ़िया है। तो इन सब का तो यही है कि ये जैसे जो भगवान बोल रहे हैं, मैं तो एक ही सेंटेंस में बोलती हूँ इसको कि जैसे एक लाइव कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर है वो कैसे जानेगा ऑपरेटर को। तो बस यही इस वाली उस वाली सिचुएशन में आप आ जाते हो तो आप सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो आराम से। तो पूरी तरह से चैतन्य भाव होकर जो जीना होता है ना, तो वो एक्चुअली अल्टीमेट मोटिव नहीं होता। वो जितना जल्दी हो जाता है तो उतना आप लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉयफुली जो है आप उसको जी पाते हैं। बस इन टोटल इनका सबका यही सार है। और बिम्मी जी एक एक करके एक्सप्लेन करिए। बिम्मी जी आप इसको 47 का, जैसे 47 है तो 47 को पूरा एक्सप्लेन ऐसे पूरा पूरा करिए। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, इसमें मतलब ओवरऑल जो पहले तो सार जो मुझे समझ आया, ईश्वर को पाने का इसमें जो लिखा है कि चाहे वेदों से, चाहे यज्ञ के माध्यम से, दान क्रियाएं, ये सब ऊपरी सिर्फ जैसे ना वो कह दो, मतलब वेद और यज्ञ ये सब एक टूल्स हैं, पर अल्टीमेटली जब आपका पूरी तरह से आप समर्पित हो और वो जो प्रेम भाव है वो ही आपको ईश्वर तक लेके जाएगा। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं हल्का सा हेल्प कर सकती है, दे कैन बी अ कैटलिस्ट। पर देन वो जो एक वो सच्ची भावना जिसे कहते हैं, निर्मल भाव से आप हो, तो वो ईश्वर तक जाने का रास्ता है। मतलब ईश्वर, और ईश्वर वैसे भी ईश्वर यहाँ पर जब अपना विराट रूप उसको दिखा रहे हैं, तो अर्जुन तब भी एंड में भी थोड़ा सा घबरा रहा है, तो ईश्वर उसको कह रहे हैं कि तू भाई घबरा नहीं। और यही है मतलब जो कॉस्मोस का जो अपना कॉस्मिक रूप उन्होंने दिखाया, जिसमें
वही सब उन्हीं से उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं में जा रहे हैं। तो उसको अर्जुन को वो जो भयंकर रूप कृष्ण का दिख रहा है, तो उससे वो थोड़ा सा घबरा रहा है। तो उसमें भी वो कृष्ण कह रहे हैं कि भाई यही है, मतलब ये सत्य है, तो तू उससे घबरा नहीं, और मैंने तुझे दिखाया तेरी वो जैसे जो इंग्लिश में कहा गया है, तेरी डिवोशन देके। तो कहते हैं मतलब कृष्ण उसको जो अपना स्वरूप दिखा के भी उसको एक क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये है। और हम इंसान मनुष्य रूप में हमें लगता है कि हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, तो वो उसको हम वही मिनिस्क्यूल से वो उसको इन्फिनिटी का दिखा रहे हैं। मतलब एक छोटे में भी मैं हूँ, एक विस्तार में भी मैं हूँ, तो अपना वो रूप दिखा के उसको जैसे उसको क्लियर उसका जो माइंड कर रहे हैं, जो मुझे इसमें समझ आया। और अब एक एक करते हुए जब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, तो पहले तो आया योग शक्ति के प्रभाव से, तो मतलब जब वो एंड में भी कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल इंसान ईश्वर के स्वरूप को समझ ही नहीं सकता, उसके लिए अपना वो कहते हैं ना, किसी चीज को समझने के लिए यू नीड टू हैव दैट होलिस्टिक व्यू, 360 डिग्री व्यू। हम संकीर्णताओं में जब किसी चीज को देखते हैं और पूरी पूरी तरह से एनालाइज नहीं करते हैं, तो हमारी अप्रोच जो उसकी तरफ होती है वो भी एक वो संकीर्ण सी अप्रोच होती है। तो इसीलिए जब वो कह रहे हैं योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में, तो योग शक्ति मतलब यू हैव टू राइज अबव योर, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किसी में तुम्हें लानी पड़ेगी। यदि तुम उतनी तक ही रहोगे तो तुम्हारी सोच भी उतने तक ही तुम फिर वो करोगे। तो हर चीज से अपने सोच का विस्तार करो। तो ये जो योग शक्ति है वो विस्तार की, अपनी कैपेसिटी की, अपनी कैपेबिलिटी की, अपनी एनर्जीज का एक्सपेंशन है। तो वो यहाँ पर उस एक्सपेंशन से श्री भगवान ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया। ये मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। मतलब कोई वो बाउंड्री नहीं है, कोई उसकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। तो यदि प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी सिचुएशन में यदि आप उसको पूरी तरह से एनालाइज करते हो, सीमा रहित, विदाउट एनी, वो कहते हैं ना, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज तक पहुंचने के लिए तुम्हारी सोच का भी तुम्हें विस्तार करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वो क्लैरिटी आएगी और तभी तुम्हें वो जो सही दिखाई देगा। वो जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध, पानी का पानी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारी वो क्लैरिटी और जब तुम्हारा 360 डिग्री व्यू वो लोगे। और इसके लिए तुम्हें अपने कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, एनर्जीज का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी वो तेरे अतिरिक्त इसीलिए आ रहा है कि अर्जुन को ही वो अभी वो रूप दिख रहा है ईश्वर का। और उन्होंने कहा कि यही वही है, ये सब टूल्स हैं और पूरे चेतन रूप तक पहुंचने के लिए ये माध्यम हो सकते हैं तुम्हारे, पर सिर्फ इन्हीं से तू वो विस्तार का देख लेगा, वो नहीं है। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला, प्रीति युक्त मन वाला मतलब वही पूरी तरह से समर्पित प्रेम भाव। अब वही जैसे जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि प्रेम भाव में जब तुम आप किसी के साथ होते हो तो आप उस समय उसके मित्र भी हो और उसके जैसे दुश्मन नहीं कहूंगी, मतलब आप उसके क्रिटिक भी होगे। और जिस जिस जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो दोस्ती है, आप दोस्त वैसे बनो कि आप जहां पर उसको क्रिटिसाइज करना है आप क्रिटिसाइज भी करो, और जहां पर वो जो सही है उसको सही बताते हुए वो प्रेम भाव। तो वो वही क्लैरिटी, वो हर जगह वो बैलेंस की बात। तो प्रीति भाव जहां पर जिसके साथ आपकी होगी, आप
उसको मतलब स्पष्ट रूप में उसके साथ उसको कह भी पाओगे आप। तो यहाँ पर मुझे लगा कि जब उन्होंने ये कहा कि प्रीति युक्त मन वाला होकर, तो वो भय रहित इसलिए, यदि आप प्रैक्टिकल लाइफ में होगे, जिसके साथ आपको प्रेम होगा, आपको कहीं गलत है तो आप उसको गलत का भी बताओगे। और जैसे कबीर साहब ने भी कहा है कि अपने साथ ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारी कहते हैं ना, जो क्रिटिक भी हो, क्योंकि वो जो प्रशंसा करने वाले हैं वो तो आपको वो वही मक्खन मक्खन ही लगा रहे हैं और वो सर है। तो सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें हर सिचुएशन में तुम्हें सही राह दिखाए। तो यहाँ पर अर्जुन इसलिए कह रहे हैं, वो हरि कृष्ण उसको ये कह रहे हैं कि तो इसलिए तो इस मेरे इस रूप को देखकर, जिसमें तुझे लोग इससे उत्पन्न होते हुए भी दिख रहे हैं और वो है, तो उससे भय नहीं कर, मतलब तू डर नहीं। और वही कि जैसे जो सच्चा मित्र होता है वो जब वो सही बात बता रहा होता है, तो जब मैं तुझे गलत कुछ बता रहा हूँ, तेरी गलती दिखा रहा हूँ, तो उससे भी तू डर नहीं, या उस भाव से डर नहीं, उसको तू जैसे तुम क्रिटिक बन के किसी को ठीक राह पर भी लाते हो। और कभी प्रेम करके, जैसे माँ होती है, वो बच्चे को, माँ की बच्चे के साथ प्रीति होती है, प्रेम होता है, तो वो उसको डांट भी दी है गलत में और सही भी करने के लिए, प्यार भी है, दुलारती भी है और मारती भी है। तो वो दोनों चीजें, तो वो बैलेंस जो है वो प्रीति भाव में ही आता है। मुझे मतलब ये प्रैक्टिकल में वैसे वो लगा कि ये तीनों श्लोकों का। हाँ ठीक है, बिल्कुल यही है गीता के श्लोक। इसी तरीके से जैसे अपने ऊपर नहीं अप्लाई होते तो कोई मतलब नहीं है ना फिर वो गीता का। गीता मतलब अपने स्वयं के ईश्वर तक पहुंचना। जी, बहुत ही सुंदर। नहीं, मोटी विशालता और विराटता में मैं जा सकती हूँ, बस मुझे अपनी वो हर चीज में सोच को और अपने अपने को ही वो ना इवॉल्वमेंट जो हम कहते हैं ना, वी नीड टू इवॉल्व। तो हर स्थिति हमें कुछ सिखा के जाएगी और हर स्थिति में हमें और एक स्टेप पे हमें इवॉल्व होना है। मतलब अपनी वही बंधनों को जिसमें हम जीते हैं या वही संकीर्णताओं में उनको तोड़ना है और विशालता में जीना है। वो हर स्थिति में रहता है। इस पे भी ना जैसे थोड़ा आप ईश्वर तक जैसे पहुंचेंगे ना, तो ईश्वर वाला जो रास्ता होता है, तो उसमें इवॉल्व में भी ना ये बोला जाएगा कि जैसे माइंड को इवॉल्व, तो माइंड मुझसे अलग हो गया, माइंड मुझसे अलग हो गया, तो वो मतलब इतनी परफेक्शन उसमें मैं परफेक्ट हूँ। अब परफेक्ट मैं हूँ हमेशा, तो उसमें इवॉल्व की उस पर अप्लाई नहीं होती, मेरे ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है। अप्लाई किस चीज़ पर होती है? वो माइंड पर होती है। तो इस तरीके से जैसे अपनी बॉडी को भी आप इस तरीके से डील करेंगे ना, तो आपको हर वक्त याद नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये बॉडी माइंड सब चीज़ें जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह से हो जाएंगी आपकी। तो एक्सपेंशन सिर्फ माइंड की करनी है, तो मेरी कोई एक्सपेंशन नहीं हो सकती, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ बस हर वक्त, क्योंकि चैतन्य हूँ ना मैं, तो चैतन्य हूँ, तो हर समय जो माइंड कहीं जाके जो स्टक हो गया, तो माइंड को ऑपरेट करने की मेरे अंदर वो पावर है, तो उसको मैं और करूँगी और आगे आगे मतलब कर रही हूँ। तो मेरे हाथ में सब कुछ है, टोटल सब कुछ है, मैं उसकी कैद में नहीं हूँ। तो जब मेरे हाथ में सब कुछ है, तो मैं पूरी तरह से ईश्वर बन के क्यों नहीं जी सकती? तो पूरी तरह पूर्णता या हर वक्त जो है जहाँ पर भी माइंड स्टक हुआ, तो माइंड को जो है उस तरीके से देनी डोज कि नहीं ये जो है छोड़, तेरी नहीं है लेना। तो वो बॉडी भाव एक्चुअली पूरी तरह से जितना जितना मिटता है ना हमारा, तो उतना उतना बॉडी की एफिशिएंसी को हम यूज़ कर पाते हैं, पोटेंशियलिटी को यूज़ कर पाते हैं। तो वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है 100 डिग्री वाला, जो 100% जो यूज़ करने की कैपेसिटी सिर्फ उसमें होती है जो बिल्कुल उससे बाहर खड़े होकर देखता है। वो इनसिक्योरिटीज़ में नहीं जीता। जो सारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको कह रहा है कि जैसे जो आपने ये जो बाउंड्रीज जो मतलब माइंड ने बनाई हुई है कि मैं, मेरा शरीर, मेरा ये, तो वो बाउंड्री हटाओगे तो उस हल्कापन में जियोगे आप, हमेशा हल्कापन रहेगा हमेशा। तो वो जैसे ही हमारे ऊपर बोझ जो आता है वो बॉडी भाव से ही आता है। तो वो माइंड का एक्सपेंशन होते ही जब मैं उसको, जैसे मैंने कोई भी भाव से अपने आप को अटकाया हुआ है किसी भी सिचुएशन में, जैसे ही मैं वो बॉडी भाव खत्म करती हूँ, मेरे को इनसिक्योरिटी कुछ भी नहीं रही ना, और फिर जो है फिर वो यूनिवर्स पूरी तरह से आपको सपोर्ट करती है, फिर पूरी तरह से। मतलब जैसे समुद्र के साथ में मर्ज हो गया, तो वो समुद्र पूरा का पूरा आ जाता है ना, तो उसकी अनंत पावर होती है, अनंत पावर होती है। तो वो वाली पावर में भगवान कृष्ण बता रहे हैं उसको जीने के लिए।
तो वो इमेजिन हाँ, भी करेंगे इसमें ना। ना मुझे हाँ हाँ बोलो, मुझे बोलिए दो जरा। एग्जांपल्स, हाँ दो एग्जांपल्स भी याद आ रहे हैं, जैसे वही स्टीफन हॉकिंग का, उसकी बॉडी तक अपने आप को लिमिट नहीं रखा ना, कि किस तरह का उसका शरीर था, और उसका बिल्कुल शरीर एंड तक वो डिटोरिएट होता रहा, मतलब आउटर, पर उसका माइंड कितना इवॉल्व होता गया। तो उसने वो लिमिटेशन अपनी नहीं रखी ना। और वो अष्टवक्र गीता का भी वही है, तो अष्टवक्र का वही है कि उनका भी बॉडी बिल्कुल वैसे थी, तब भी उनको अष्टवक्र की 8 तरह से उनकी वो डिफॉर्म्ड बॉडी थी। तो जहां पर आपने शरीर के लिमिटेशन में अपने आप को रख दिया, और मतलब खोलना है कहीं पर भी। इनफैक्ट एक है कि एक वो मेजर, उनकी तो टांग कट गई थी, और जब वो आए किसी ऐसे टेड टॉक नहीं था, मतलब ऐसे कहीं पर आए थे किसी इवेंट में बोलने के लिए, और तो हमें पहले लगा कि ऐसे ही मतलब वो अपनी कोई किसी चलो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर उनको बुलाया है, और उन्होंने बोलते बोलते फिर उन्होंने अपना पैंट का ऊपर किया और अपना हटाया, उनकी थाई नहीं, नीचे टांग नहीं थी, आधे टांग कटी हुई थी, और उन्होंने दिखाया कि मैंने ये लगा रखा है, और मैं वो मैराथन भाग रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं। तो वही है सारा, जहाँ पर अपने आप को अपने लिमिट के बियॉन्ड आपने अपने समझ लिया और शरीर तक नहीं सीमित रखा, तो फिर देन देयर इज नो, देन यू आर देयर इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनिटी। मतलब ये होता है कि ये किसी और के लिए नहीं करना, मतलब आप इतना अच्छे तरीके से अपने लिए, हल्कापन हाँ। करके जीते हैं ना, तो उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं ना। ये नहीं कि आपका हाथ पैर कुछ कट गया या कोई इंसिडेंट घर में ऐसा हो गया तो उसके लिए जिंदगी जो है अपनी खराब कर दें। जितने दिन के लिए बॉडी मिली हुई है तो उसको यूज करेंगे ना, तो उसमें जो है मैक्सिमम यूटिलाइज ही वही कर पाता है, कृष्ण जैसे ही लोग कर पाते हैं। हम तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड दायरे में जीते हैं ना, तो वो परेशानी का कारण हमारा हम स्वयं है। तो वो उसको जीवन जो मिला है 50 60 70 100 साल का जो मिला है उसको ढंग से जिए, तो उसमें बाउंड्रीज में मत जिए। वो कोई जी रहा है जीते रहने दीजिए, कुछ मैटर नहीं करती। अपने आप में हमेशा हल्कापन जो है वो बना रहना चाहिए। जब भी भारीपन हुआ तो स्पिरिचुअल नहीं है वो आदमी, जैसी हैवीनेस आ रही है तो वो स्पिरिचुअलिटी का निशानी नहीं है। स्पिरिचुअल मैन की निशानी वही है कि जो हमेशा लाइट रहता है, हर सिचुएशन में लाइट, क्योंकि उस बॉडी भाव से उसको पता होना चाहिए ये चीज की। तो यही जो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ यही है, अपने स्वयं का अध्यात्म, मतलब मैं कौन, मैं वाली अवस्था में जाना स्पिरिचुअलिटी है। अब कोई ये सब चीजें, अब इसमें जो भगवान ने कृष्ण ने इसमें बोला कि अध्ययन से, दान से, तप से, क्रियाओं से क्या जानोगे आप, कंप्यूटर से क्या जानोगे आप, कंप्यूटर थोड़ी ना जान सकता है उसको। तो वो तो कंप्यूटर तो क्या है, ऑपरेट करने वाला ही खुद वो स्वयं वही है ना, ऑपरेटर ही खुद वही है। तो उसको जानने की आप प्रयास कर रहे हो, उसके थ्रू, इंद्रियों के थ्रू कर रहे हो, तो वो इंद्रियां क्या मैटर करेंगी उसमें, आप स्वयं ही वही हो ना। हाँ, और वही ना, जैसे पूजा पाठ, और वही ठीक है आप किसी तकलीफ में हो तो आप ठीक है हम वो पूजा पाठ करना शुरू करते, वो क्या करेगा जब तक तुम अपने मन से नहीं वो हो पा रहे, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पा रहे, तो पूजा पाठ भी तुम्हें वही ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहले तो अपनी खुद मदद करो ना, अपने आप को उससे निकालो। तो ये पूजा पाठ वही है कि ये पूजा पाठ, ये जो हमने सुना, किसी ने कहा, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारे, हमें वही टूल्स हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली इट इज यू हु हैज टू डू इट। तुम्हें वो क्या होता है ना, तुम्ही जैसे मतलब चैतन्य मैं हो गया और उसमें मैंने तुम्हें अपना माइंड में घर बना लिया। और कई बार जैसे बॉडी भाव से हम ज्यादा डोमिनेट होते हैं तो बॉडी को बना लेते हैं घर, कि बॉडी में हमारी जो है जान अटक गई, कि बॉडी में कुछ हो गया तो उसके लिए जान अटक गई। तो वो घर हमने कहाँ बनाया हुआ है ना, अनंत का घर तो अनंत पे ही होगा ना, अनंत है हम। तो उस अनंत का याद करके ही अनंत की विशालता में आप जाएंगे। तो विशालता में जाना मतलब सारी पगडंडियां जो है आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो वो साहस जो है चाहिए, बस एक साहस चाहिए जंप का। तो जंप तो हर एक्शन में मारना ही पड़ेगा। तो वही है, उसमें एंजॉय कर सकता है मनुष्य। वो अमृत वाली अवस्था वो तब आती है। तो अमृत से जब हो जाता है, तो जब आप उस लेवल पर बैठकर जो भी कुछ बोलते हैं और जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे बेशक आप प्रोफेशनल तौर पर अपने ऑफिस में कर्म करें या वैसा करें, तो वो कर्म ईश्वर का कर्म होता है। और वही वाणी जो है ईश्वर वाणी, अमृत वाणी होती है, जो अमृत से, अमृत वाणी की कृष्ण ने ही बोला, हम भी बोलते हैं तो वह भी अमृत वाणी है, यदि हम शरीर भाव से परे हटकर बोलते हैं तो कोई चीज। तो वो अमृत पर आप बैठकर जब आप तत्व पर बोल रहे हैं तो उस समय अमृत वाणी है। तो अब जैसे इस समय जो अब बात हो रही है ना, ये जैसे जो सभी लोगों का जो लेवल है वो अमृत वाणी है। तो क्योंकि लाइव अमृत वाणी झरती है ये,
तो कहते हैं ना जैसे बुद्ध पुरुषों की अमृतवाणी झर रही है, झरना कहते हैं उसको, झरना। तो ऐसा होता है कि वो उसी समय ही मैन्युफैक्चर हुई है। तो ये इस कारण जो है लाइव सेशन इसको मतलब मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अब इस समय में ऐसा ही लेवल सबका हो चुका। तो बहुत ही सुंदर सेशन रहते हैं। हाँ जी, विनोद जी बोलेंगे अब। विनोद जी आप बोलिए। हेलो, नमस्ते। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा आपने और रिमी जी ने एक्सप्लेन किया। इसमें मैं एक दो चीजें ही खाली ऐड करूंगा। जैसे रिमी जी ने यही कहा कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखनी है, मतलब इसमें वही सार है 47 का कि अगर आप जो मतलब विराट तरीके से मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, नॉर्मल तरीके से जो सोचेंगे तो वो चीज पे नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरा 48-49 में ये समझ में आता है कि जैसे बोला है कि मतलब तप से, वेद से, मतलब आप कोई भी टूल्स जो भी यूज कर रहे हो उससे नहीं, जब तक आपका जो जैसे मैं मतलब सरिता जी कहती है, इससे भी क्या है कि वो चतुर्भुज रूप देखकर फिर वो मन वाला होकर उसी शंख चक्र पद्मयुग मतलब जो कमल की तरफ फूल जो रहता है वो हमेशा शांत मन रहता है। तो जब तक आपका शांत मन नहीं है तब तक ब्रह्म से पहुंचना मुश्किल है। मतलब कि आप जितने भी उपाय कर रहे हो, लेकिन जब आपका मन शून्य होता है और शांत होके ब्रह्म की तरफ सरेंडर करते हैं, मतलब दो भाव ये इम्पोर्टेंट रखते हैं, सरेंडर करना और मन को शून्य करना। जब ये करके डिसीजन शून्य मन से लेंगे और कर्म करेंगे तो ही ब्रह्म की तरफ जो है आपके जाने का रास्ता खुलता है। बस यही कह रहे हैं, बाकी तो सब आपने और सरिता जी ने और रम्मी जी ने बोला। धन्यवाद। रास्ता नहीं खुलता विनोद जी, ब्रह्म ही हो जाते हो आप उसी समय। ब्रह्म ही हो जाते हो जी। मतलब लेकिन इसमें वो कहा है ना, मतलब वो शंख गदा के रूप को फिर देख मतलब पहुंचते नहीं है, मतलब इसमें उसका अर्थ ये है। बाकी अदरवाइज तो मन शून्य होने के बाद ब्रह्म में लीन हो ही जाते हैं। हाँ। ये संदर्भ इसमें यहाँ पर वो पहुंचे नहीं है, मतलब इसके लिए। और बिल्कुल ठीक बात है। और शंख वगैरह भी ना, ये जैसे उसमें इसमें ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन शंख का ना जैसे वो कहा जाएगा जैसे बॉडी जो है हमारी वो शंख की हो गई, और जो सारा जो हाथ पैर सब कुछ जो सारी इंद्रियां हो गई चक्र और गदा की तरह से, मतलब इंस्ट्रूमेंट की तरह से हो गया। और जो उसमें से जो साउंड आ रही है, जो साउंड बजाने वाला जो है वो मैं हो गया, चैतन्य साउंड। तो वो जिसकी जैसी शंख होता है, जैसे जिसका जैसा शंख है वो वैसी उसके अंदर ध्वनि आएगी। असुर है तो असुर की आएगी, सुर है तो सुर की आएगी, ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म की। तो ब्रह्मनाद उस अवस्था का नाम है जहाँ पर आप शंख में बिल्कुल खाली हो जाते हैं अंदर। तो वो वाला जो नाद जो बचता है वो कृष्ण नाद हुआ, अनहत नाद जिसको बोला जाता है, मन शून्य वाली अवस्था से जो पैदा हुआ जी। अब इसको कौन बोलेगा? दीपा जी आप बोलेंगी? हाँ जी दीपा जी आप बोलना चाहेंगी तो बोलिए अनम्यूट करके, नहीं तो आप हर्षा जी आप बताइए। चलिए एक है कि जैसे हम लोग जब ईश्वर को देखना चाहते हैं ना, तो मेरा हिसाब से तो जैसे ये जो दिव्य दर्शन, जो विशाल दर्शन जो होता है अर्जुन को, वो एक्चुअली हम लोग जब सुनते भी हैं तो हमें भी लगता है कि ये जो विशालता है वो परम तत्व है। और वो परम तत्व हमारे अंदर कैसे मैं प्रकट करूं, अभी लेटेंट है मेरे अंदर में, पर उसको मैनिफेस्ट करना ही तो पूरा प्रयास हो जाता है। कि जो अर्जुन को दृश्य आया और उसका लायकात बने कि वो कृष्ण का विश्व रूप देख सका, हम लोग की लायकात कैसे बढ़े कि हम भी थोड़ा बहुत भगवान के करीब आकर उनका दिव्य दर्शन कर सके। तो ये जो प्रयास चलती है कि एक तो जिज्ञासु का भावना और अपने आप में पूरा सिंसियरिटी, पूरा when you integrate spiritual in your daily life, then आपको एक कृष्ण का स्थिति महसूस हो जाएगा। तो मुझे सार इसका बहुत अच्छा लगा, ये 3 श्लोकों का। और आप लोग ने सबने जो बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो बहुत जरूरी है। एक मैं उदाहरण देने चाहती हूँ कि हमारे सत्संग था गुरुवार रविवार को, हम लोग बुद्धिस्ट चैंटिंग में भी मैं जाती हूँ। तो कुदरती वो दिन मैं बच्चे लोग को मिलने गई, तो एक्चुअली हम लोग का 53rd एनिवर्सरी था संडे को, 53rd वेडिंग एनिवर्सरी। तो हमने वहां गए, बच्चे लोग को मैं मिल कर आई।
तो उधर ही मेरा भावना ऐसा था कि उन लोग कभी बिजी होंगे और शायद शाम को कुछ प्रोग्राम होएगा, आएंगे तो सही, पर मैं पहले उनको मिल लूं। तो वो भावना मेरा इतना डीप लव था। मैं उधर गई और जब मेरे ग्रैंडसन को मैंने मिला तो बोला कि दादी या गोल्ड चेन हैज फॉलन ऑफ। तो मैंने सोचा कि देखो, प्रेम भावना में न, ये किधर भी गिर सकता था। यदि मैं घर नहीं जाती और सीधे उनके पास नहीं जाती, सीधे रास्ते में गिर जाता तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। मेरा भावना था कि ना, मुझे प्रेम है, बच्चे लोग को मिलना है। तो वो भाव जो होता है ना, वो कृष्ण रूपी है। वो प्रेम भावना और कृष्ण से अलग है ही नहीं। और जब भी हम प्रेम भावना में रहते हैं ना, तो उसका अनन्य हमारे पर एक प्रोटेक्शन आ जाती है। उसको जैसे बोलते हैं ना कि प्रेम स्वरूप आपका अंदर, बच्चे लोग का वन वे ट्रैफिक है। आपका एक प्रेम भावना में आप रहेंगे ना, तो आपका एक पूरा प्रोटेक्टिव ओरा सब चीज में काम कर जाता है। तो कई उदाहरण ऐसे बन गए थे ऐसे तब मेरी लाइफ में। तो मुझे वो दिन यही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वही भावना, वही प्रेम, वही उत्साह, वही उमंग से हम जब भी एक एक पल जिएंगे, तो कृष्ण हमारे साथ है और हमारी रासलीला भी चालू रहेगी। बहुत ही बढ़िया जी। अब कौन बोलेगा? सोनपाल नहीं, पहले मोना से पूछ लेते हैं। मोना हो क्या? नहीं, चलो मोना गायब हो गई। हाँ, सोनपाल जी आप बताइए। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। हमारा मन हमेशा संसार और कृष्ण के बीच में, जैसे झूले पे हम झूलते हैं तो पीछे जाते हैं, उतना ही हम फिर आगे जाते हैं। तो यहाँ पे आज विम्मी जी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, स्टीफन हॉकिंग, और तुरंत उनके दिमाग में अट्टा वक्र आया। और ये दोनों एक अलग अलग युग में हुए हैं, लेकिन दोनों एक ही बात, जैसे विम्मी जी ने बताया, कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शरीर से ऊपर उठना है। हर्षा जी ने भी एक इच्छा बताई कि काश हम भी वही लेवल पे पहुंचे, यानी कहीं उनको मन में ऐसा है कि मैं वहां पे नहीं हूँ। विनोद जी ने भी फिर शंख चक्र गदा पद्म की बात की और मन को सरेंडर करने की बात की, यानी मन को सरेंडर करना है, यानी मन तो है। फिर इतना बड़ा विश्व रूप दिखाने के बाद वापस चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तो चतुर्भुज रूप में उनके 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म होता है। तो पहली बार मैं ऐसे जब सुना तो मेरे मन में एक एक शब्द अपने आप आज आने लगे थे कि शंख है वो नाद का प्रतीक है। नाद यानी शब्द जो हम वाद विवाद संवाद के लिए प्रयोजित करते हैं। चक्र का मतलब फिर गति है, और गति भी कैसी है? घूम फिर के वापस वहीं आना है। चक्र चक्र जैसे पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स गति में तो है, लेकिन उनका गति का जो शेप है वो वर्तुल का है, यानी आप गति में भी रहोगे लेकिन आना तो फिर वहीं पे है। जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, तो पृथ्वी तत्व है वो स्थिरता में गति महसूस करती है, और जल तत्व है वो गति में स्थिरता महसूस करती है। और गदा जो दिखाया है, तो गदा है वो अपने ही भीतर के विकारों का युद्ध। जैसे सरिता जी आप हमेशा कहते हो कि मैं चैतन्य लेवल से जब काम करूंगी तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, न पाप न पुण्य, न अच्छा न बुरा, न गर्म न ठंडा, न उजाला न अंधेरा। तो उसके लिए भगवान ने गदा का प्रतीक दिया है। और पद्म, ये मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित लगा आज, क्योंकि जैसे हमारे वहाँ राष्ट्र में अवार्ड भी देते हैं, तो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म शब्द सभी में आता है। तो पद्म का मतलब मुझे आज ऐसा लगा कि कृपा है। हम चाहे कितना भी कर्म का सहारा ले, कितना भी ज्ञान का सहारा ले, कितना भी भक्ति का सहारा ले, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि ये कोई भी डिग्री काम नहीं लगती। कर्म की नहीं, विज्ञान की नहीं, भक्ति की नहीं, वैराग्य की नहीं, केवलम ही उनकी कृपा। अब ईश्वर को पाने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, एक ही क्राइटेरिया है कि उसकी कृपा। उसकी कृपा अर्जुन पे बनी, और उन्होंने बोला कि अर्जुन, ये तेरे अलावा पहले कभी किसी ने ये देखा नहीं है। तो उसके अंदर अर्जुन ने जो भी किया है उससे ज्यादा 1000 गुना तो कृष्ण ने किया है।
यानी हमारी जो तालावेली है प्रभु को पाने की, उसको देखने की, उसके साथ रहने की, वो बन जाने की, स्वयं कृष्ण बनने की, उसके लिए उसकी ही कृपा सबसे बड़ी अहम चीज है। और उसकी कृपा पाने के रास्ते हम सब रोज ढूंढते हैं, और वो रास्ते में प्रतिक्रियाओं में हम जब जीते हैं ना, तो वो रास्ते हम भूल जाते हैं। केवल अपने बीइंग में रह के, अपने मूल स्वभाव में रह के, जो हमारा मूल स्वभाव है वो कैसे मैनिफेस्ट होता है, सत्य से, प्रेम से, करुणा से, वहां पे वो संसार वाली प्राप्ति या मुझे ही मिले या मेरे परिवार को ही मिले या हम अव्वल नंबर पे रहे, वो सब चीजें नहीं, यहाँ पे फिर विराटता आती है। तो ये मंडन मिश्र और शंकराचार्य का जो संवाद हुआ था, उसकी जज बनी थी मंडन मिश्र की वाइफ। लेकिन आजकल जो हम जज बनते हैं ना, तो हमारा जो रिजल्ट है वो बायस भी हो सकता है। लेकिन देखो, मंडन मिश्र की वाइफ जज थी, लेकिन उन्होंने किस जरिए से रिजल्ट दिया था कि दोनों के गले में ताजे फूलों की माला पहनाई थी। तो वो जिसका हृदय ज्यादा धड़केगा, जिसके हृदय से ज्यादा कंपन आएंगे, ज्यादा गर्मी उस वक्त रिलीज होगी, तो अपने आप वो फूल मुरझाने लगेंगे। यानी जजमेंट है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जजमेंट है कि वो जो फूल जो है, तो शास्त्र का वाद विवाद भी आजकल हम इतने एक्सपर्ट्स हो गए हैं ना कि अच्छे से बोल तो लेते हैं, लेकिन भीतर से हमें अपने आप को पहचानना, तो उसके लिए जो माला वाला जजमेंट है कि वो सबको दिखता है। यानी हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारा वर्तन, हमारे विचार, वो हमारे एक टोटल होलिस्टिक अस्तित्व से पूरे समाज में वो रिफ्लेक्ट होता है। और जब पूरे समाज में हमारे होने से प्रेम, शांति, करुणा बढ़ती है, तो उसी समय हम परमेश्वर स्वरूप हो ही जाते हैं। तो ये इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स भी आज मुझे थोड़े क्लियर हुए कि हम कृष्ण भाव में है कि नहीं, वो साबित भी होता है, वो दूसरों को भी साबित होता है और अपने आप को भी साबित होता है। तो ये विराट स्वरूप और फिर चतुर्भुज स्वरूप, ये जो हमारा झोला है, कभी चतुर्भुज स्वरूप की ओर जाता है, कभी विराट की ओर जाता है। लेकिन यही है कि साधना में लगे रहे, मन को सतत संसार में देते हुए, और ये सब में लगते हुए जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। जो शरीर के अंदर अभी आत्मा बैठी है, तो शरीर के कुछ कर्तव्य है, शरीर किसी का बाप है, शरीर किसी का बेटा है, पति है, तो वो सब जिम्मेदारियां भी निभाते हो, लेकिन वो नाटक करने के हिसाब से हमको करना है। नाटक करते करते अपना मूल स्वरूप रोज देख लेना है, और थोड़ा सत्संग से ये क्लियरेंस आता है। जैसे आज विमी जी की बात से स्टीफन हॉकिंग और अष्टावक्र, विनोद जी की बात मन सरेंडर की, और आपका तो चैतन्य भाव वाली बात, और हर्षा जी की एक बाल सहज चेष्टा, और उनकी आवाज में भी एकदम तरोताजगी जो रहती है, तो वही तो कृष्ण है। तो बस यही है कि सत्संग में बने रहे, साथ में पूरा दिन वो सत्संग का जो हमें जो मिला है, उसका कोर, उसका जो फ्रूट, वो हमारे व्यवहार में, हमारे परिवार को, हमारे गांव को, हमारे लोगों को, हमारे बिजनेस में जो जिनसे जुड़े हैं, उसका प्रसाद हमसे कृष्ण हमें निमित्त बना के बांटता रहे। बस यही प्रार्थना है मेरी। ये जो आपने ये वाली चीज़ बोली ना कि दूसरों को भी लगती है वो चीज़, जैसे आपने वैसी फूल के हिसाब से जो बात समझाई, दूसरों को दूसरों की दृष्टि में, मतलब जैसे कृष्ण अवस्था में वो दूसरा होगा ना, तो तब दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखती किसी को भी। वो खुद वैसी अवस्था में होना चाहिए, जैसे हम हैं वैसा ही सामने वाला वैसा ही है, बिल्कुल आइडेंटिकल, तो तब वो मुझे जान पाएगा, अदरवाइज नहीं जान सकता कोई भी किसी को। तो कृष्ण अवस्था जो पदम वाला जो इसमें बोला ना, पदम मतलब ये होता है कि फूल डाली से अलग हो गया, तो फूल डाली से अलग हो गया, तो वो पद्म श्री अवार्ड जो इस तरीके से जो दिए जाते हैं, तो वो अवार्ड मतलब बात देने नहीं देने की नहीं, मेरी अपनी वह अवस्था, जो भी मैं कर्म करती हूँ उसमें मेरी वह अवस्था आ रही है कि नहीं आ रही है, मैटर वो करती है। तो ये जो सुगंध होती है, ये सिर्फ आपको तो करेगी, आप हल्के रहेंगे तो नेचुरली दूसरी तरफ में भी जो आपकी जो रेजिस जो पास होती थी गर्मी की या सर्दी की या जिस भी तरह की जो भी मनस्थिति होती है, तो वो गर्मी सर्दी टाइप की सी जो चीज़ें मन जो हमारा जो मैनिफेस्ट कर रहा होता है,
तो वो रेजिस कम लगेगी, हीट कम लगेगी, बस दूसरे को भी कम दिखाई देगी। जैसे कहीं कहते हैं ना कि कोई इंसान जल रहा है तो वो चारों तरफ में अग्नि टाइप किसी वो रेजिस भेजता है चारों तरफ, लेकिन अब वो रेजिस जो है मेरे अंदर यदि कृष्ण तत्व उस समय जागृत है तो कृष्ण तत्व उसको जो है शमन कर देता है इस तरीके से कि क्योंकि और नहीं उगाता और नहीं करता। जैसे एक मनुष्य क्रोध में है तो दूसरा मनुष्य में यदि कृष्ण तत्व है तो वो उसके क्रोध को किस तरीके से शांत करेगा, तो ये चीज़ पूरी तरह से पता होती है उसे। तो वह अवस्था ना कृष्ण के दर्शन करने के लिए कृष्ण बनना पड़ेगा, तो कृष्ण बने बिना नहीं बनेगी बात। तो वो पदम वाला जो है तो उसमें हर एक्शन में बात ये नहीं कि अब ये युद्ध में फंसा हुआ है तो पदम बनना है, इसको वो होना है। पदम हमारा हर एक्शन में पदम हमारा होना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम एक ब्रश भी नॉर्मल कर रहे हैं मॉर्निंग में जैसे उठकर, तो वह भी अवस्था जो है वो ऐसा होता है कि जैसे जब मेरे को रिक्वायर्ड है कि ये चीज़ हुई है, जब मैं चैतन्य भाव में जीऊंगी तो मुझे पता होगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ को साफ करना है। ऐसे नहीं कि अंधाधुन बन के जो है मैं करती जाऊंगी क्लीन अपने आप को, तो वो नहीं होता। तो हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर्म चैतन्य होकर जीने में जो आनंद है तो वो पदम वाला जो है वो उस तरीके का मूवमेंट होता है। तो उसमें बात ये नहीं कि मेरे कर्म से दूसरी तरफ पे शांति हुई क्या नहीं हुई, दूसरे को तो आप देखेंगे ही नहीं और ना अपने आप के शरीर भाव में रहेंगे। अब एक तो आपने बोला कि दूसरे का, और एक हर्षा जी ने बोला कि हम कृष्ण को साथ रखेंगे तो मतलब वो हमारी टेक केयर करेगा। तो टेक केयर तो जब मैं कर्म में अपने आप में निष्कामता वाले भाव में आती हूँ तो टेक केयर मेरी अपने आप हो जाती है। यदि मैं क्योंकि उस धारा के विपरीत नहीं बह रही, सेम उसमें बह रही हूँ। तो ये जैसे एक तो सन है, सन के चारों तरफ में अराउंड में हम घूम रहे हैं। जब हम अपने आप में बॉडी भाव में जीते हैं तो जैसे ये 9 ग्रह जो चक्कर लगाते हैं ना, तो चक्कर लगाने की बजाय ना वो 9 ग्रह इधर उधर भाग रहे हैं। तो वो मेरे को अपने ऊपर में चैतन्य भाव में जब मैं आऊंगी तो वो जो सारे जो मेरे माइंड का जो गेम है वो मेरा पूरा उसको ही घूमता है उसके अराउंड। तो ये चीज़ जो है अलग अलग नहीं जाते, हम ग्रह अपने आप अलग अलग नहीं जाते। तो इस तरीके से जब जीना होता है तो हम यूनिवर्स के एक उसमें आते हैं। जो शरीर और उसकी गति, जो मन की गति होती है वो तो चक्राकार में घूमती है, लेकिन मैं स्थिर रहती हूँ तो मैं चैतन्य हो गई। तो वो स्थिरता जो है वहाँ पर आनी है। तो वो स्थिर तब होगा जब हम तादात्म्य नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के साथ में, हम उसको ऑपरेट करेंगे बजाय तादात्म्य करने के। अब इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन और करिए जरा, कौन करेगा? अब सोनपाल जी जरा आप करिए जरा दोबारा एक बार। नहीं, बस यही है कि कृष्ण भाव में रहे, शरीर में होते हुए भी हम शरीर से मुक्त का अनुभव करें। और उसके लिए मुझे तो आज के सत्संग के समय तो केवल उसकी कृपा ही ज्यादा पावरफुल लगती है कि हमारे जो भी प्रयत्न है वो कम पड़ने वाले हैं। उसकी कृपा से ही सब कुछ होगा। और उसकी कृपा कैसे मिलेगी? तो हम सत्संग में रहेंगे, और जितना समय सत्संग में रहेंगे आत्म स्वरूप में रहेंगे। आत्म स्वरूप में रहते हुए फिर हमें शरीर में भी रह के जो नाटक करने हैं वो पूरे हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे अपना रोल। परफेक्ट है, ठीक है। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए। मुझे तो मेरी सासू माँ अभी बहुत याद आ गई, क्योंकि जब मेरी सगाई हुई थी ना तो उसने कहा था मुझे कि गुजराती में कहा भलू थयो भाग्यो जंजार। तो मैंने समझा नहीं कभी, क्योंकि मैं बोली आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा जब मुझे लकवा हुआ ना तो मेरे को 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलती थी भगवान के वो कुछ करने के लिए, कीर्तन में जाने का लिए, सत्संग सुनने का लिए, क्योंकि घर का कार्य में वो बहुत बिजी थे ना। कभी महाराज रखे थी, वो कभी हाथ से सब खाना काम करती थी। तो जब उनको लखवा हुआ तो बोला भलू थयो भाग्यो जंजाल, हमना वो भजीस श्री गोपाल। मीन्स अभी मैं श्री गोपाल भजूंगी। पर मैंने उनको इतना ही, मेरे आंख में एकदम पानी आ गया। बोला नहीं, लखवा होने का जरूरत नहीं है, आप अभी हमको उदाहरण देंगे क्या कैसे जीना है? तो बोलते हाँ, अपना शरीर को इतना संभालना कि बीमार नहीं पड़े, अपने आप को ऐसा सब करना कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहे। मैंने अपने आप का शरीर को बहुत निग्लेक्ट किया तो मेरी प्रेशर उसको थी और सब तो इस पे लकवा हो गया। तो अभी क्यों जो हम समझ सकते हैं ना कि विजडम जो होता है ना वो बहुत गहरी चीज है। और जैसे स्टीफन हॉकिंस का उन्होंने उदाहरण दिया
या जो भी जो महासंत है, जो लोग महाविज्ञानी लोग भी है, जो कई लोग को हैंडीकैप भी थे, वो लोग कई कई चीज आविष्कार भी किए बिकॉज ऑफ their सिक्स सेंस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ their विजडम. तो ये विजडम को हमेशा अपने आप में रखना कि हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनकर, जब तक ये शरीर में जान है, प्राण है, हम सेवाधारी बनकर रहे और उपयोगी बने भगवान के लिए. पहला भगवान, फिर संसार. बढ़िया बढ़िया, बहुत ही सुंदर. हाँ जी बिमी जी, आप बताइए. हाँ जी, ये जो कृपा की बात कही वो तो है ही कि ईश्वर की कृपा के कारण ही अर्जुन को भी श्री कृष्ण का वो रूप दिखा. और वो जैसे उन्होंने कहा कि औरों को किसी को नहीं दिखा, तो वो कृपा के कारण ही. पर कृपा भी उसी के ऊपर होती है ईश्वर की, जहां तुम वही सेंटेंस मुझे आता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. यदि आप पहले तो तुम्हें अपने ऊपर ही काम करना है. ईश्वर दृष्टि, ईश्वर कृपा तुम्हारे पर तभी होगी जब तुम भी, यदि तुम आलस्य में और सिर्फ राम नाम नाम वो कहते राम राम जब करते रहोगे तो उससे नहीं. और राम नाम जब करते हुए भी, अब ये नहीं है कि जो संत महात्मा जो उधर हिमालय में निकल जाते हैं और वहां पर तपस्या कर रहे हैं और वो कि हाँ जी हमें ईश्वर मिले या ईश्वर के दर्शन हुए, वो उसके अंदर भी जो मेडिटेशन करते हैं, जब वो कहते हैं कि हमें एकदम वो फील हुआ, हम उसमें ट्रांस में चले गए, तो उसमें भी हुआ है कि दे हैव वर्क. मतलब चाहे शरीर से काम कोई कर रहा है, चाहे कोई मन से काम कर रहा है, कर्म तो कर रहा है. कर्म की कभी भी वो आपने कर्म को कहीं नहीं छोड़ा. तो जब आप उसमें भी है, तो आप जब तपस्या भी कर रहे हो तो आप पूरी तरह से उसमें लीन हो रहे हो. जब आप घर में कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें पूरी तरह लीन हो रहे हो. तो वो लीनता किसी चीज कैसे ही मन से तन से हो रहे हो, ईश्वर कृपा आप पर है. आलस्य जहां पर आप बैठे बैठे कि हाँ जी चलो जी मुझे मिल जाएगा, मैंने भगवान का नाम ले लिया, या जैसे वो तो फिर आडंबर ही रह गए ना. जैसे लोग जो इतने मंदिरों में जाके वो है, भगवान तो वहीं पर भी आ जाएगा तुम्हारे, तो उसको याद तो कर, वो तो साथ ही खड़ा है तेरे. तो वो तेरे साथ खड़ा है, मतलब ये है कि ईश्वर तो मतलब बिल्कुल कहते हैं हर जगह है, तुझ में है, हर चीज में है. पर तू उसमें उसका ध्यान करना, या हर ध्यान करना मतलब ये रियलाइजेशन की हर चीज में है. बस उतने को समझते हुए तू अपना कर्म करता रहे, बिना उसके वही प्रीति भाव से तू कर्म कर रहा है और पूरा संलग्न होके कर रहा है. फिर देन ही टेक्स यू बियॉन्ड एवरीथिंग. और फिर तब हमें मैजिक लगता है कि अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया, मैंने कैसे कर लिया. तो ईश्वर तो वही है कि यही कह रहे कि लिमिटेड कुछ भी नहीं है, मैं तुझे बहुत कुछ तेरे अंदर अपार कैपेबिलिटीज हैं, और उसको भी निखारने के लिए, उसको उजागर करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज करने के लिए, पहले जैसे ही मैं अपने आप को, जैसे वो थॉट ही आता है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थॉट, ही विल टेक मी बियॉन्ड थिंग्स. पर काम तो मुझे ही करना है, उस कृपा के लिए मुझे काम करना ही है. मतलब ये हाँ, सोनपाल जी क्या कह रहे हैं? मिमी जी, मैं 99% आपसे सहमत हूँ कि काम तो मुझे ही करना है. तभी उसकी कृपा होगी. लेकिन कभी काम मुझे ही करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि काम जब मुझे ही करना है तो उसमें मेरा मैं बहुत मजबूती से पकड़ा जाने का संभावना मुझे दिखता है. जैसे अभी एक मुझे रामायण की कहानी याद आ रही है कि गौतम ऋषि बाहर गए थे और इंद्र को उनकी पत्नी के साथ सहशयन करना था, तो उसने गौतम ऋषि का रूप ले लिया और फिर उन्होंने सहशयन किया. जब गौतम ऋषि आए तो उनको पता चला. यहाँ पे गलती किसका था? इंद्र का था. इंद्र ने गौतम ऋषि का, और लेकिन श्राप दिया अहल्या को. अहल्या का तो इसमें क्या गलती है? उसका क्या कर्म खराब है? तो कर्म की गति तो देखे ना, तो इंद्र को क्यों गौतम ऋषि कुछ नहीं कर सके, और अहल्या पे क्यों उन्होंने श्राप दे दिया कि तू शल्या हो जा? उसका तो कोई गलती नहीं, उसका कोई गलती नहीं था, ऐसा हमें
अपीरियंटली दिखता है, लेकिन गौतम ऋषि ने उसका कौन सा गलती निकाला कि तेरा सतीत्व इतना पावरफुल नहीं है कि तू अपने पति के रूप ले आए हुए उस शख्स को पहचान नहीं पाई। गौतम ऋषि ने ये गलती निकाला, यानी कर्म के रास्ते पे है ना। सीता को, अहल्या को ये अग्नि परीक्षाएं जो आती है ना, वो अपने मैं को जलाने के लिए आती है। कहीं ना कहीं जब यहाँ पे कर्ता होता है ना, वहां पे मैं थोड़ा मजबूत रहता है, लेकिन कृपा वाली बात में है ना, मैं डिजोल्व हो जाता है। वो पूरा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। वो सरेंडर वाला है, 100% सरेंडर वाला चीज है। तो आपकी बात एकदम 99% सही जा रही है। जिंदगी में मैं भी ये अनुभव करता हूँ, लेकिन मामला पूरा कब होगा? जब 100% कृपा होगी। बिना कृपा से हमारे प्रयत्न करे या न करे, आखिर में तो सब वो बोलते हैं ना कि सब मुझसे आए हैं, मुझ में समा जाएंगे। तो उसकी कृपा ही मुझे तो अल्टीमेट सोर्स लगती है उसको पाने के लिए। तो मेरे को तो इसमें सोनपाल जी, मेरे को इन्हीं का ही जमा इसलिए है कि ये जो बीबी जी जो बोल रही है ना, तो वो डिसोल्यूशन की तरफ पर बोल रही है ना। तो वो बात ये नहीं कह रही है, कृपा तो उसकी सतत बह ही रही है, कृपा उसकी विड्रॉ नहीं है कहीं से भी। हमें उसकी कृपा में जाके मर्ज होना है, हमें मर्ज होना है। हम कहाँ विड्रॉ कर लिया हमने अपने आप को उसकी कृपा से? उसकी तो मर्ज होना है, हमें मर्ज होना है, यानी हम उससे अलग है ना। हमारा मैं बचा हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मर्ज तो हरी नहीं, हरी है तो मैं नहीं। नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है। ये जो बिम्मी जी जो कह रही है ना, वो ये कह रही हैं कि मेरे को जैसे मर्ज हो, जब मैं अशांत में कब होती हूँ ना, जब मैं अशांत होती हूँ तो यानी कि मैं हूँ ना अब तब, और जब मैं अशांत नहीं हूँ तो मैं उसके साथ मर्ज ही हूँ ना, मर्ज ही हूँ। तो जब मैं खड़ी हुई तो मेरे को वापस मैं वहीं जाती हूँ, तो फिर मैं कृपा तो उसकी बह ही रही है सतत। मैं कहाँ से खड़ी हो गई अलग? तो ये अवस्था, ये ठीक कह रही हैं बिम्मी जी। बिम्मी जी आप बताइए। हाँ, नहीं नहीं, मतलब मुझे सोनपाल जी भी वही कह रहे हैं, पर थोड़ा देखो, कृपा ईश्वर, जब मैं भगवान को याद भी कर रही हूँ, जैसे मैं किसी मुसीबत में हूँ और मैं भगवान का जब मैं नाम ले रही हूँ और मैं भगवान को प्रेयर कर रही हूँ, तो उसमें भी मैंने अपना मैं तो हटाया। मतलब उसमें भी मेरा जो कर्म है, वही मैं कह रही हूँ, मन से भी कर्म है, तन से। हम सिर्फ तन के कर्म को ध्यान बात कर रहे हैं, मन का भी तो कर्म है। जब मैंने अपने आप को हटा दिया अपने उससे, और मैंने उसके अंदर एकदम लीन हो गई उसमें, चाहे मैं मांग ही रही हूँ और अपना मुझे कष्ट हो रहा है, मैं मांग रही हूँ, और तो वो उसने सच्चे मन से मैंने उसको याद किया, तो मैंने मन का कर्म किया वहां पर, और मन के कर्म से उसने उसकी मेरे ऊपर कृपा हो गई। और तब मैं कहती हूँ कि भाई, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने मेरी सुन ली। तो भगवान ने सुन ली, मतलब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मैंने क्या किया उसके पीछे? मैंने हो सकता है शरीर से कर्म किया हो सकता है मन से कर्म किया हो। तभी वो कह रहे हैं कि मेरे तक पहुंचने के लिए रास्ते अनेक हैं, भक्ति का भी है, ज्ञान का भी है, कर्म का भी है। ठीक है, गीता में हर जगह कर्म को ज्यादा महत्व दिया गया है, पर रास्ते अनेक हैं। और जिंदगी में हर जगह अल्टीमेट द गोल और द डेस्टिनेशन इज वही। अब रूट हम कौन सा लेते हैं, और हमारे जैसे हम लोगों के लिए जो हम संसार में जीते हुए, हम कभी कोई भी हम रूट ले लेंगे। जैसे जो तपस्वी होते हैं, जो वहां चले गए, जो हिमालय में चले गए, उन्होंने एक रूट ले लिया। हम जैसे संसार में रह रहे हैं, हमारे लिए एक रूट लेना मुश्किल है। तो हम तीनों रूट, जो उस समय के लिए जो रूट है, हमने वो रूट लेके, पर हर जगह अल्टीमेटली वी आर वांटिंग टू रीच हिम, एंड ना उसकी कृपा को ही चाह रहे हैं हर जगह। और वो यही कह रहे हैं कि कृपा वहीं बरस रही है ईश्वर की, जहां पर वो प्रीति है, जब प्रेम है। और वो प्रेम का मतलब ही वही है कि जब आपने अपने आप को बिल्कुल खाली करके, वो शून्य वाला जो करके आपने, चाहे वो कर्म कर दिया, चाहे वो सोच कर दी, चाहे उसकी पूजा कर ली, व्हाटएवर वे, वो मन का डिसोल्यूशन कह दिया ना। जैसे हाँ, बिना भी कहते हैं बार बार, तो मन को जीरो करना ही तो उसमें मर्ज हो जाना है ना। उसकी कृपा से हमने अकृपा वाली कैटेगरी में अपने आप को, मन एग्जिस्ट जहाँ कर गया तो वहां कर दिया हमने। मैं तो ये कह रही हूँ कि बार बार जहाँ मन खड़ा होता है तो वहीं तो दिक्कत आई। तो मन को जीरो करने के हिसाब से, अब जीरो में कोई भी योग लग जाए,
वहां तक जाने के लिए। अब मन को जीरो किस तरीके से करना है वो उसी मनुष्य को पता होगा जिसका मन खड़ा है। अब वो खड़े को फिर जीरो करके डिसॉल्व होना है उसको। तो बार बार करना तो हमें ही है काम, तो हमें ही मतलब ये करना है, मन को डिसॉल्व होना है। मन ने खड़ा कर लिया, उसने अपनी कोई डिमांड बना ली, तभी तो आया, तभी तो वो अलग हुआ। उसने अपनी कोई डिमांड खड़ी कर ली कि मैं तो नहीं मर्ज हो रहा उसमें, बार बार सागर में मर्ज होना ही पड़ेगा उसे, सामदंड भेद करके करना पड़ेगा। तो मन पे काम इस तरीके से किया जाता है बस। तो उसमें मतलब प्रेम तत्व ये नहीं कहता कि आप जो है भारी, तो उसमें जैसे एक नदी है, वो उसको पत्थर रोके पड़ा है, तो कैसे भी करके जबरदस्ती करके उसके ऊपर से जाके नीचे से जाके चारों तरफ से बनाएगी ना वो रास्ता अपना जाने का, वहां मर्ज होने का। तो ऐसे ही बस जीवन में करना पड़ता है। तो उसमें किसी को सारा विड्रॉ करके मिल रही है शांति तो विड्रॉ कर लेता है, और कोई, लेकिन ये विड्रॉल भी जो होता है ना, जैसे हम मेरे को विड्रॉ करना है या नहीं करना, तो ये भी कृष्ण तत्व में जब बैठोगे तो कहाँ पर विड्रॉ करना है, तो वो कहाँ पर मौन रहना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर शस्त्र उठाना है, कहाँ पर शस्त्र अपने शरीर को ही बन जाना है, और बिल्कुल अपने आप को जैसे बिल्कुल अदृश्य वाली पोजीशन में आप लाएंगे ना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारे योग समझ में आ जाएंगे। तो मेरे लिए कौन सा योग मैटर है, तो वो करती है। एक बार सोनपाल जी, तो आप तो बोलना चाह रहे हैं, सोनपाल जी 1 मिनट जरा विनोद जी से भी एक बार पूछ लेते हैं जरा सा, बस हल्का सा। जी विनोद जी आप बताइए जरा। चलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मतलब कंफ्यूजन वही है कि जैसे कहा भूमि जी ने, बराबर है, तो दोनों तथ्य सही है। मुझे नहीं बराबर ही लग रहा। हाँ जी सोनपाल जी बताइए आप। मुझे एक बात मेरे मित्र की याद आ गई। जैसे हम रात को अलार्म लगा के सोते हैं, तो एक मन कहता है 6 बजे उठ जाना है, एक मन कहता है कि कल से उठेंगे, आज अभी मस्त ठंडी है, रजाई ओढ़े हुए है तो सो लेते हैं। तो मन ये द्वंद्व में फंसा हुआ है, 6 बजे उठना है और 6 बजे नहीं उठना है। लेकिन एक तीसरा जो स्वरूप है वो कर्ता का है, वो जो उठ जाता है वो तीसरा हम जनरली अपने को 2 में ही देखते हैं, एक राग वाला, एक द्वेष वाला। लेकिन एक तीसरा है, वो निर्णय लेता है कि भाई उठना है। तो ये तीसरे को हम जितना जल्दी जान लेंगे उतना जल्दी वो कृष्ण मिल जाएगा, ऐसा लगता है, जो निर्णय लेता है कि मुझे उठना है। क्योंकि एक मन सोने को बोलता है, एक मन उठने को बोलता है, लेकिन एक और मन है जो सचमुच उठ जाता है। तो ये तीसरा वाला मन, हम लोग द्वंद्व में फंसे हैं ना, तो कोई भी द्वंद्व में एक तीसरा है, एक ऑब्जर्वर है, एक साक्षी है, एक देखने वाला है, वही हम है। और जब वो स्थिति आप बोलते हैं कि चैतन्य की आ जाती है, तो हर चीज में ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए कि एक मन कहता है ये करना है, एक कहता है नहीं करना है, और तीसरा जो है वो असल में करने वाला है। मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं पांडिचेरी में पढ़ती थी तो मदर का हमेशा एक इंस्ट्रक्शन रहता था कि ये जो तीसरा मन का जो मनीष जी बात कर रहे हैं ना, बोले अलार्म क्यों चाहिए आपको, आपकी इतनी अंदर की सुषुप्ति में जागृता है, यदि आप विश्वास रखें तो, कि आप अंदर से नक्की करेंगे ये टाइम में आपको उठना है तो आप उठ ही जाएंगे। पर वो मन का एनर्जी को टैप करके फिर सोना है। तो जो मनीष सोनपाल जी जो कहते थे, तो हम लोग कभी अलार्म रखे नहीं है वहां में और अभी अलार्म की जरूरत पड़ती है मुझे, क्योंकि बहुत सारे हेवी स्लीप होता है, इसलिए तो फर्क ये पड़ गया है। एक ये भी नोट करा जाता है कि जैसे ना, एक तो मन आदतवश भी करता है कई सारी चीजें। अब वो मन कह रहा है कि मेरे को उठना है, जैसे 5 बजे उठना ही है, एक मन की ये कंडीशनिंग हुई है, 5 बजे उठ के जैसे कोई बहुत बड़े तीर मारने हैं, और वो पता चलेगा इतनी बेचैनी है कि वो खुद को तो बेचैनी है ही, और जो साथ में जो आसपास का जो जुड़ा जगत है उसको भी बेचैन करते हैं वो लोग। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जागृतता सबसे ज्यादा ऊंची चीज वही है, वो साक्षी वाला जो विटनेस है ना। तो जब कोई नहीं है तो हमें नॉर्मल बैठना भी आना चाहिए ना, हर वक्त ही करना वाला चीज में क्यों जाना है। बैठना सीखो, एक अपने साथ में बैठना सीखो विश्राम में। तो वो मन को वो वाली आदत भी डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करने वालों ने विध्वंसी करे हमेशा, अच्छे करके भी जो करे हैं, तो वो उसमें जो अवस्था, जो पहले मन को आत्मा के संग में बैठना, जो सत्संग होता है, वह चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप हैबिचुअल होते हैं, मॉर्निंग में भी 5 बजे उठने के, 7 बजे, या जो भी काम से आप जो जुड़े हुए हैं ना, जो भी काम से, वो 4 दिन नहीं भी होंगे ना, ये वाला अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए आज की डेट में लोगों को,
कि वो मन को इस तरीके से तसल्ली में बैठाना सिखाएं कि वो अननेसेसरी जो हम भाग दौड़ करते रहते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ है। वो भी एक मतलब सोए हुए वाली जो होती है ना, जो भी आदतवश हम कर रहे हैं वो हमारे सोने की निशानी है बजाय अवेकनिंग की। चाहे बेशक बहुत ही सुंदर वाली चीज़ें भी आप कर रहे हो दिन में, तो भी उसमें ऐसा जो है अपने आप को ये देखने वाली कैटेगरी में डाल के और उसमें देखने वाली में स्थित रहना कि जो है मन कितना बेचैन हो रहा है। कोई आप काम करते हैं, आपको आदत है उठते ही वो काम करने की आदत है, आप देखिए कि मन कितना बेचैनी, जबरदस्त उसके अंदर बेचैनी रहती है। ये चीज़ मतलब मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि एक्चुअली मेरे को भी बहुत ज़्यादा ना ऐसे जैसे हाइपर एक्टिव हूँ, तो हाइपर एक्टिव के बाद में ये चीज़ मेरे को तो ये अभ्यास करना पड़ा उल्टे वाला, जैसे नॉर्मल बैठने वाला अभ्यास ज़्यादा करना पड़ा कि मन में बेचैनी किस लिए उठ रही है, क्या ऐसा छूट रहा है मतलब बाहर ऐसा। अब इसके बारे में यदि बिम्बी जी आप बताइए जरा, मेरा तो ऐसा स्वभाव था तो मतलब नहीं ये ना, क्योंकि वो आदत बढ़ जाती है ना, जैसे वही 5 बजे उठे, फिर वहां से बेचैनी शुरू हो गया, अब क्या करूं। अच्छा मेरे साथ भी बहुत बारी होगी, जैसे आज ही हुआ कि आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वॉक पर नहीं जाऊंगी। वो ये थोड़ा सा वही था कि मेड नहीं आ रही है, बहुत सारे काम है, ये वो है, तो वो अपनी वही लिमिट बना ली ना मैंने अपनी, पहले दिमाग में ही वो लिमिटेशंस बना ली। फिर उसके बाद अब मैं उठ गई हूँ पर उठ नहीं रही हूँ, मतलब लेटी ये सोच ही जा रही हूँ, बुनी जा रही हूँ, ये चाहिए तो वो है, मतलब ख्याली पुलाव बने जा रहे हैं वो, उसमें अब ये हुआ है। फिर 7 बजे जैसे वो लगा कि नहीं, कहते हैं आई शुड गो फॉर अ वॉक, आई हैव द टाइम, तो वहां पर मैंने अपनी बाउंड्री को तोड़ा कि हाँ, कि मैंने बाउंड्री बना रखी थी, टाइम इतना घंटे हैं और जरूरी है कि मैंने उसी समय की, ठीक है मैं कभी 7:30 जाती हूँ वॉक पर, आज 7 बजे निकल जाती हूँ, आज 6:45 निकल जाती हूँ, 6:30 निकल जाती हूँ, तो वही, तो वो उन चीजों से खुद ही निकलना। और किसी दिन नहीं भी की वॉक और किसी दिन मन कर रहा है कि अच्छा जी चलो बैठना ही है, घूमना ही है, फ्रेंड्स मिल गए उनके साथ बैठ के गप्पे मारना है, तो वो भी ठीक है। तो वो वही घूम के वही जाती है कि लिमिटेशन, हल्केपन में आना, हल्केपन में आना। हम अपने आप ही तो बना रहे हैं, हम अपने आप ही तो सोच के वही जो आप कह रहे हो कि क्या निकल जाएगा, एक दिन वॉक नहीं की या एक दिन वो नहीं किया या एक दिन वो, मतलब हमने ऐसे अपने आप को, लाइफ को इतना भी क्या डिसिप्लिन कर, ठीक है डिसिप्लिन होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि वो डिसिप्लिन आपका बंधन सा बन जाए और फिर तुम्हारा वही सोच के वो जूसेस अंदर वो बन रहे हो, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो नेगेटिव जूसेस अंदर बने जा रहे हैं तो वो अच्छे होने की जगह और बुरे ही हो जा रहे हो तो अंदर वाला बस डिसिप्लिन रहे, वो स्थिर, और बाकी इनडिसिप्लिन सब कुछ चलता है, वो बाहरी तौर का कुछ भी मैटर नहीं करता। खेल की तरह है ना, खेल जगत में जब भी प्रवेश करोगे कि जब आप किसी भी सीमा से बंधे नहीं हुए हो आप असीम हो मुझे तो ऐसे ही लगता है। हल्कापन ही मेरे को तो ऐसा लगता है टेस्ट उसका यही है कि बिल्कुल शांत वाली उसमें आ जाते हो ना आप तो बस। जी सोनपाल जी क्या कह रहे हो? बस आप खेल बोला तो मेरे दिमाग में एकदम से श्रीकांत याद आ गया। क्रिकेट में एक खिलाड़ी था कृष्णमाचारी श्रीकांत, वो जो शॉट खेलता था ना, वो कोई भी बुक में पहले कभी था ही नहीं, वो अपने अंदाज से खेलता था। फिर दूसरे लोग ये शॉट नया आया करके उसके बारे में रिसर्च करते थे। तो भगवान भी हमारे में रहे, श्रीकांत को जगाता है, नए नए शॉट्स हमको लगाने हैं। ये तो बहुत मजा आता है उस वाली लाइफ में जीने में। देखा कि बिल्कुल बहुत है। हाँ, वही हर चीज में ढूंढना है, वो नया ढूंढना क्या, वो अपने आप वो फ्लो होते रहने देना है, वो अपने आप ही आएगा। वो जो एक बुढ़ापे वाली कैटेगरी आती है ना, एक यंग वाले भी, जो जैसे अब यंग वाले उसमें जो डिसिप्लिन हम जो बाहरी तौर के जो डिसिप्लिन में करते हैं ना, वो एक बुढ़ापे वाली लाइफ है कि उसमें की लाइफ से बंधे हुए से बड़े डिसिप्लिन होकर जीने लग गए। एक जो नया नूतनपन तो हर उसमें हर शॉट में आपका जो है नयापन दिखाई देगा। जब आप नए हो तो आप नए हो तो नया मैनिफेस्ट करोगे, आप पुराने हो तो पुराना करोगे। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है जीवंत होकर जीना, मतलब उसका टेस्ट यदि आप करते हो ना हर क्षण, तो आप देखेंगे कि नएपन में मज़ा आता है। अपनी चीज़ों से भी बोर होता है इंसान, तो बोरियत हमारा स्वभाव नहीं है, हम बोर नहीं हो सकते। तो वो बोर नहीं होने वाली अवस्था तब है जब आपके एक्ट हमेशा जो है पूरे जीवंतता से निकलेंगे, जो घिसे पिटे अपने आदतों के कारण नहीं निकलेंगे। तो आदत वाली चीज़ें तो कितनी बोरिंग लगने लग जाती हैं, बोर हो जाती है ज़िंदगी बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर सेशन रहा आज का, कल मिलते हैं उसके लिए, बुद्धवाणी के लिए। हाँ जी हर्षा जी, आपको तो नहीं कहना था ना कुछ, मैंने आपसे पूछा नहीं जी। बस यही है कि जस्ट फ्लो, गो विद द फ्लो,
और जैसे बिम्मी जी ने भी कहा कि विजिलेंस इज वंस बिगेस्ट प्रोटेक्शन। अभी कल जैसे मेरा फ्रेंड, मैं वॉक में, मेरे जैसे एडिक्शन है वॉक का, और वो बोली मैं 8 बजे आने वाली हूँ, तो मैंने वॉक में नहीं गई, और मैंने खुशी खुशी नाक धोकर उसका लिए तैयार हो गई। तो ये जो मेरी जो एटीट्यूड थी, मेरे को लगा मेरे में कुछ भी अफसोस नहीं रहा। अभी समझ में आ जाता है कि कृष्ण प्रेम में सब सहज ही हो जाता है, और वो आ रही है मुझे प्रेम से मिलने के लिए, तो मैं भी उसको प्रेम के बर्ताव करूं। मैं वॉक में जाऊं, फिर उसको बोलूं तू बैठ, मैं नहा लेती हूँ, तो उतना प्रेशियस टाइम मैं उसके साथ नहीं बिता सकूंगी, तो मैं तैयार होकर बैठ गई उसके लिए। 8 को वो आ गई, इसलिए मैं सत्संग कल ना बोल दी थी मैंने। पर ये जो है कि भाई रिजिडिटी will take you away from God, but flexibility will always keep you close to God, you know. तो आपने एंजॉय कर पाई ना उसको भी, देखो यही होता है ना। हाँ, yes, तो yes, अपने yes. आदतों को जो है आपने एक तरफ पर रखा और उस हाँ। नए मूवमेंट को नए तरीके से स्वीकार किया। Yes, yes, यही, yes. बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, Yes. कल मिलते हैं बुद्धावाणी के लिए। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और मैं आपको भी कल बहुत याद करती हूँ, सबको, मेरे सत्संग लिए सबको, कोई एक एक जन को, कि भाई यू नो मैं आज सत्संग हमारा कैंसिल भी हुआ, तो बोली मेरे लिए तुमने कैंसिल किया, ज्वाइन करना, हम लोग ज्वाइन होंगे। मैंने बोला नहीं, पता है मैंने क्या बाप हुआ, बुलवाए। देखिए इसमें मैं ये कहूंगी कि उसमें ये जो कृपा जो जो चीज होती है ना, ये ऐसे होता है। यदि आपकी इंटेंशन, जैसे मन वैसा था कि आपको उसमें जाना था सेशन में, और वो था, तो वो चीज मिस हो गई, वो नहीं हुई ना, वो नहीं हुई। ऐसे ऐसे बदलती है चीज, ऐसे बदलती है। जहाँ हम परमात्मा के साथ मिलते हैं, तो परमात्मा तो हमारी मर्जी को पूरा करना चाहता ही है ना। Yes. इसीलिए तो देता है, वो इतनी लाइफ देता है जो हमको। बस प्रेम की भावना, बस। हाँ, तो वो लाइफ हमें इसीलिए देता है कि हमारे जो है सारी विशेष फुलफिल हो जाएं, वो देता ही हमें इसीलिए। चलिए, ओके जी, जय श्री कृष्ण। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।